শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদশীয় ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদি লীলায় আছি। চতুর্থ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 27 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 4.27 অনওয়ার্ডস। 27 नंबर श्लोक 27-28 एक साथ है। ओई शुद्ध भक्त लइया करिमु अवतार, এই শুদ্ধ ভক্ত লইয়া করিমু অবতার, করিব বিধি করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার, করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার, বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার, বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার, শেষে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার, শেষে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার। भगवान श्री कृष्ण प्लान कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी प्लानिंग चल रहा है। এই সমস্ত শুদ্ধ ভক্তদের নিয়ে আমি নানা রকম অদ্ভুত লীলাবিলাস করার জন্য অবতরণ করব। যে সমস্ত লীলাবিলাস বৈকুণ্ঠেও অজ্ঞাত, আমি সেই রকম লীলাবিলাসে মগ্ন থাকব এবং তা আমাকে পর্যন্ত চমৎকৃত করবে। ঠিক আছে, ऐसे প্ল্যান किया। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে শ্রীকৃষ্ণ তার ভক্তদের শুদ্ধ ভক্তি স্তরে বিকাশ সাধন করার শিক্ষা দান করেছেন। তাই তিনি তার মধুরতম দর্শন ও শিক্ষা প্রচার করার জন্য উদ্দেশ্যে তার পরম অদ্ভুত লীলাবিলাস করার জন্য ভক্তরূপে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর অবতরণ করেন। किसी को कुछ समझ नहीं आएगा तो पूछिएगा, नहीं तो मैं आगे भागूंगा। अभी चमत्कृत बोले हैं, किससे होंगे प्रभु? परम अद्भुत लीला करार जन्य भक्त रूपे निर्दिष्ट समय चमत्कृत। कहाँ लिखा है चमत्कृत, बताइए पहले। प्रभु बंगला तो नहीं है मेरे पास, हिंदी तो है आपके साथ। वो चमत्कृत कहाँ लिखा है? अब तो दोनों को मैचिंग करके पढ़ना है ना। अनुवाद या क्या तात्पर्य में? आप स्टार्टिंग में ही बोले थे कुछ। ओके, तो সেই সমস্ত লীলা বিলাস বৈকুণ্ঠ অজ্ঞাত, মানে महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण बोले हम अभी महाप्रभु रूप में ऐसे अवतरण करके लीला करेंगे जो वैकुंठ में वो सब होता ही नहीं है। महाप्रभु का लीला तो वैकुंठ में नहीं होता, बहुत माधुर्य है, प्रेम भरा हुआ लीला है। আমি সেই রকম লীলা বিলাসে মগ্ন থাকবো, हम उस लीला में मग्न भी रहेंगे এবং তা আমাকে পর্যন্ত চমৎকৃত করবে। মানে मेरे को भी आई विल आल्सो बी एस्टोनिश्ड। महाप्रभु ऐसे कृष्णचंद्र बोल रहे ऐसे मैंने महाप्रभु लीला में महाप्रभु खुद चमत्कृत हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पैरा ट्रांसलेशन, परपोर्ट का नेक्स्ट पैरा, सेकंड पैरा। चिदाकाशे असंख्य বৈকুণ্ঠ লোক রয়েছে, सबको मालूम है ना, असंख्य বৈকুণ্ঠ লোক। এবং সেই সমস্ত বৈকুণ্ঠ লোকে ভগবান তার নিত্য ভক্তদের সম্ভ্রম মিশ্রিত সেবা গ্রহণ করেন। সম্ভ্রম মিশ্রিত মানে ऑ एंड रेवरेंस, रेस्पेक्ट, सेवा में रेस्पेक्ट भी है एडेड। তাই শ্রীকৃষ্ণ তার গোলক বৃন্দাবনে যে সমস্ত গূঢ় লীলা উপভোগ করেন সেই সমস্ত লীলা তিনি প্রদর্শন করেন। তার এই সমস্ত লীলা এতই আকর্ষণীয় যে তা স্বয়ং ভগবানকে পর্যন্ত আকৃষ্ট করে। গোলক বৃন্দাবন के लीला भगवान को इतना মানে প্রিয় है। এভাবেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে তিনি তা आस्वादन करें। वह भगवान करता है और महाप्रभु के रूप में आस्वादन करता है, क्योंकि भक्त आस्वादन कर सकता है। ये पैराग्राफ समझ में आया सबको? मो विषये गोपीगणेर उपपति भावे, মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে, যোগ মায়া করিবে আপন প্রভাবে, যোগ মায়া করিবে আপন প্রভাবে। कृष्णचंद्र भगवान अभी प्लानिंग कर रहा है जोगमाया प्रभावे। जोगमाया वो हम लोग का दोपहर का क्लास में आया था ना, ये पौर्णमासी, उनका जोगमाया भी है। गोपिकारा আমাকে তাদের উপপতি বলে মনে করে।
যোগমায়া ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি। এই শক্তির প্রভাবে ভগবান আত্মবিস্মৃত হন এবং বিভিন্ন রসে তার শুদ্ধ ভক্তের কাছে প্রেমাস্পদের রূপে পরিগণিত হন। এই যোগমায়া শক্তি ব্রজগোপিকাদের চিত্তে বিশেষ ভক্তিভাবের সৃষ্টি করে, যার প্রভাবে তারা মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাদের উপপতি। उपपति को इंग्लिश में क्या लिखा है करुणा राधे माता जी? पैरामोर, PARAMOUR, মানে লভার। हाँ लवर, या শুদ্ধ ভক্তি এই আবেগকে কখনোই জড় জগতের অবৈধ কাম লালসার সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তের প্রেম ভক্তিকে জড় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে যৌন সম্পর্ক বলে মনে হতে হলেও সেই বিশুদ্ধ প্রেম হচ্ছে কাম গন্ধহীন। ওকে, একদম পিওর লাভ है, कोई लस्ट नहीं है इसमें। আমাদের বুঝতে হবে যে এই জড় জগৎ হচ্ছে চিৎ জগতের প্রতিচ্ছবি। চিৎ জগতে যদি বস্তুর যথার্থ অস্তিত্ব না থাকে তাহলে জড় জগতে তার প্রতিফলন দেখা যেতে পারে না। সমস্ত জড় প্রকাশের উৎস চিৎ জগৎ। এই জড় জগতের প্রণয় ঘটিত কাম হচ্ছে চিৎ জগতে অনুষ্ঠিত ভগবত প্রেমের জড় চেতনা মিশ্রিত বিকৃত প্রতিফলন। विकृत प्रतिफलन, परवर्टेड रिफ्लेक्शन। ओके, ये लस्ट जो है जड़ जगत में, किंतु भगवत तत्व संबंधे यथार्थभावे अवगत ना होले तार हृदयंगम करा जाए ना, तब तो लगेगा कि भगवान जो कर रहे वही लस्ट है। और फिर कुछ मूर्ख लोग बोलेंगे अगर कृष्ण किया तो रासलीला, हम किया तो ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा बोलते रहेगा, है ना। अगला श्लोक 30 नंबर। आमी हो ना जानी ताहा ना जाने गोपीगण, आमी हो ना जानी ताहा ना जाने गोपीगण, दुहार रूप गुणे दुहार नित्य हरे मन, दुहार रूप गुणे दुहार नित्य हरे मन। গোপিকারা তা জানে না বা আমিও তা জানি না, কেননা আমরা আমাদের পরস্পরের রূপ ও গুণে সর্বদাই মুগ্ধ থাকি। চিদাকাশে বৈকুণ্ঠ লোক সমূহের কর্তৃত্ব করেন নারায়ণ। ঠিক আছে, नारायण মানে কর্তৃত্ব মানে एडमिनिस्ट्रेशन करता है वैकुंठ का। तार भक्तरा तारी मतो रूप विशिष्ट, तारी मतो रूप विशिष्ट क्यों? सबको सारे पे मिलता है तो सब हाँ, सब 400 फॉर्म ब्लू कलर। एवं सेखानेও श्रद्धा और सम्भ्रम सहकारे भक्तरा भगवान सेवा करे। आई डोंट नो कितना अलग लग रहा होगा ना वैकुंठ में। सब 400 फॉर्म, भगवान विष्णु 400 फॉर्म को सेवा करता है, थोड़ा कैसे लगेगा ना। किंतु এই সমস্ত বৈকুণ্ঠ লোকের ঊর্ধ্বে গোলক বা কৃষ্ণ লোক রয়েছে, যেখানে আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃস্ফূর্ত শুদ্ধ প্রেম রূপী লাদিনী শক্তির পূর্ণ রূপে প্রকাশ করেন। যেহেতু জড়জগতে ভক্তরা সেই বিষয়ে প্রায় কিছুই জানে না, তাই ভগবান তাদের এই প্রেম বিলাস প্রদর্শন করাবার বাসনা করেন। মানে भगवान चाहते हैं कि जड़ जगत के लोग गोलोक वृंदावन के प्रेम के बारे में जाने। गोलोक वृंदावने परकीया रसे प्रेमेर विनिमय হয়। এটি हाँ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, ये तो 400 फॉर्म जो होते हैं, ये तो 8 क्या 400 फॉर्म 400 जो होते हैं फॉर्म में, तो ये तो ये वैकुंठ लोक में, उसके ऊपर जो बताया जा रहा है गोलोक वृंदावन, वहां पर तो 400 फॉर्म होनी है ना? नहीं वहां नहीं है। ठीक है। गोलोक वृंदावने परकीया रसे प्रेमेर विनिमय হয়। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। এটি অনেকটি বিবাহিত রমণীর পরপুরুষের প্রতি আকর্ষণের মতো। জড়জগতে সেই ধরনের সম্পর্ক সবচাইতে ঘৃণ্য, কেননা তা হচ্ছে চিৎ জগতের পরকীয়া রসের বিকৃত প্রতিফলন। ওকে, কালিন্দী সুবিলাসিনী মাতাজি, ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড স্টপ মি নাও। এই পরকীয় রসে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের যে সম্পর্ক, তা ভগবত প্রেমের পরম প্রকাশ। মানে দিস ইজ সাপোজ টু বি দ্য হাইয়েস্ট ফর্ম।
परकीय रस। तो एक भजन में भी है ना, परकीय रसे तहा ब्रजते प्रकाश, परकीय भावे, परकीय भावे। हाँ, कौन सा भजन है? जय राधा जय कृष्ण। राधा जय कृष्ण। हाँ, भक्तेर संगे भगवानेर এই বিনিময়ে যোগমায়ার प्रभावे संपादित है, क्योंकि सब जोगमाया कंट्रोल करती है, वही इवेंट मैनेजर है चित जगत का। एक्चुअली चित जगत का बोलना से ठीक होगा या गोलोक वृंदावन का बोलना चाहिए ना? भागवत गीताয় বর্ণনা করা হয়েছে যে সর্বোচ্চ স্তরের ভক্তরা দৈবী মায়া বা যোগমায়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। याद रखिएगा, भक्तरा बोलते, भगवान को नहीं बोल रहे। भक्त लोग भी योग माया से ही कंट्रोल होता है। सर्वोच्च स्तरेर भक्तरा, भक्त लोग भी जो करते हैं वो भी, जैसे उसीलिए गोपी लोग भूल जाते हैं कि वो भगवान है, उन लोग अलग से डिफरेंटली बिहेव करता है कृष्ण के साथ। महात्मनास्तं मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता, भगवद गीता नवम अध्याय 13 संख्या श्लोके। যারা যথার্থই মহাত্মা তারা সম্পূর্ণ রূপে কৃষ্ণ ভাবনায় মগ্ন হয়ে নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। এটি হচ্ছে শ্লোকের অর্থ। তারা দৈবী প্রকৃতি বা যোগমায়ার আশ্রিত। যোগমায়া এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করেন, অবস্থা মানে সিচুয়েশন এসে বানা দিতে হয়, যেখানে ভক্ত ভগবত প্রেমের প্রভাবে সব রকম বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে করতে প্রস্তুত থাকেন। ভক্ত স্বাভাবিকভাবে ভগবানের সেবার জন্য শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করতে চান না, কিন্তু যোগমায়ের প্রভাবে তিনি ভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেমের বশীভূত হয়ে সবকিছু করতে প্রস্তুত থাকেন। शी इज रेडी टू डू एनीथिंग। एग्जाम्पल, गोपी लोग माझ रात में अपने घर छोड़कर चले गए केशी घाट भगवान से मिलने, तो सब विधि निषेध सब कुछ उल्लंघन करके ऐसा भक्त लोग करने शुरू कर देते हैं। जड़शक्तिर प्रभावे मुक्त जीव যোগমায়ার কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, কেননা বদ্ধজীব ভগবানের সঙ্গে ভক্তের বিশুদ্ধ সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত নয়। কিন্তু বিধিনিষেধের মাধ্যমে ভগবত ভক্তি সম্পাদন করার ফলে মানুষ অতি উন্নত স্তরে উন্নীত হতে পারে এবং তখন যোগমায়ের পরিচালনায় शुद्ध प्रेमेर तत्व उपलब्धि करते पारे। तो इनिशियल स्टेज में जो जरा जीव है उसको जोगमाया कभी कंट्रोल नहीं करता, वो समझ भी नहीं पाएगा जोगमाया क्या। लेकिन ये विधि निषेध पालन करते करते जब भक्त एक स्तर पे उड़ जाएगा, यानी शुद्ध भक्त बन जाएगा, उस समय वो व्यक्ति भगवान का इंटरनल पोटेंसी, अंतरंग शक्ति योगमाया द्वारा निर्धारित होगा, चालित होगा, एडमिनिस्टर्ड होगा। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ। যোগমায়া শক্তির প্রভাবে যে দিব্য প্রেমের আবেগ অনুভূত হয় তার ফলে শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজবালারা উভয়ই আত্মবিস্মৃত হন। আত্মবিস্মৃত মানে खुद को भूल जाते। এই আত্মবিস্মৃতির ফলে ব্রজ গোপিকাদের অপূর্ব সুন্দর রূপ ভগবানকে অপ্রাকৃত তৃপ্তি আস্বাদন করায়, যার সঙ্গে জড়জাগতিক যৌন সম্পর্কের কোনো সম্বন্ধ নেই। যেহেতু দিব্য ভগবত প্রেমে জড়জগতের সবকিছুর অতীত, তাই আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যেন ব্রজগোপিকারা জড়জাগতিক নীতি বা শালীনতা বোধ লঙ্ঘন করছেন। आपात दृष्टि लगता है कि अरे ये तो अपना फैमिली छोड़ के भगवान के पास चला गया, अपना पति को छोड़ के, अपना परिवार, सास ससुर क्या सोचेगा इनके बारे में, ऐसे करके छोड़ के रात को चला गया। तो आपातत दृष्टिते माने फ्रॉम एक्सटर्नल लग सकता है, किंतु के बोलছে এখানে তাদের এই আচরণ জড়জগতের নীতিবাগীশদের निरंतर विभ्रांत करे। जो लोग नीति रूल्स एंड रेगुलेशंस मानते हैं उन लोग को बहुत बुरा लगेगा, है ये क्या कर रहा है गोपी लोग। তাই যোগমায়া ভগবানকে এবং তার লীলা সমূহকে জড় বিষয়াসক্ত মানুষদের চোখে আড়াল করে রাখে। সেই কথা ভগবত গীতার 7ম অধ্যায়ের 25 সংখ্যা শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে ভগবান বলছে যে সকলের কাছে প্রকাশিত না হওয়ার অধিকার তার রয়েছে।
कौन सा श्लोक है? ना हम प्रकाश सर्वस्य, सबके सामने मैं प्रकाशित नहीं होता हूं। हरि बोल। যোগমায়ার প্রভাবে প্রেমানন্দ ভগবানের সঙ্গে ব্রজগোপিকাদের কখনো মিলন হয়, আবার কখনো বিচ্ছেদ হয়। ভগবানের এই অপ্রাকৃত প্রেম निर्विशेषवादी ज्ञानीদের कल्पनार अतीत। वो लोग बोले क्या विच्छेद से प्रेम होता है, लव इन सेपरेशन, ये क्या मूर्खता जैसा बात है ना। जो लोग भगवत भक्ति नहीं है वो लोग तो समझेगा नहीं। তাই বদ্ধ জীবদের সর্বোচ্চ স্তরের পারমার্থিক উপলব্ধি প্রদান করার জন্য এবং স্বয়ং সেই মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য ভগবান তাদের সম্মুখে আবির্ভূত হন। ভগবান এতই করুণাময়ী যে অধঃপতিত জীবদের তাদের প্রাকৃত আলোয় ভগবত ধামে ফিরিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ করেন। যে বিকৃত যৌন সম্পর্কের প্রতি ব্যাধিগ্রস্ত অধঃপতিত জীবেরা এত আসক্ত, তার প্রকৃত রূপ হচ্ছে ভগবত প্রেম, এবং এই ভগবত প্রেম ভগবত ধামে নিত্য আস্বাদন করা যায়। ভগবান যে রাসলীলা বিলাস করেন তার মুখ্য কারণ হচ্ছে অধঃপতিত জীবদের বিকৃত নীতিবোধ ও ধর্মবোধ পরিত্যাগ করিয়া তাদের ভগবত ধামে প্রাকৃত आनंदेर प्रति आकृष्ट कराना। इसीलिए भगवान रासलीला करता है। ऐसा नहीं कि हम लोग को फॉल डाउन कराने के लिए, लेकिन हम लोग को अपलिफ्ट कराने के लिए। যিনি যথাযথভাবে রাসলীলা তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে তিনি জড়জাগতিক যৌন জীবনে লিপ্ত হতে অবশ্যই ঘৃণাবোধ করবেন। हरि बोल। देखिए कितना उल्टा लगता है लोगों को जड़ जगत में। रासलीला देखकर तो लोगों को काम वासना बढ़ जाता है जो जड़ जगत है, लेकिन भक्तों के लिए क्या होगा? उल्टा चीज होगा। रासलीला को अच्छा से अगर कोई आस्वादन करेगा तो उनका जितना भी जड़ काम वासना है वो जीरो हो जाएगा। अगर सही रूप से सही शिक्षा से उसको अगर ग्रहण करे कोई भक्त। फिर से मैं पढ़ रहा हूं सेंटेंस। যিনি যথাযথভাবে রাসলীলা তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন তিনি জড়জাগতিক যৌন জীবনে লিপ্ত হতে অবশ্যই ঘৃণা বোধ করবেন। যে মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তিনি যখন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে ভগবানের রাসলীলার বর্ণনা শ্রবণ করেন তখন তার হৃদয় থেকে সব রকমের জড়জাগতিক কাম ভাব সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়। यस प्रभु। हरे कृष्णा बाबू जी। तो जिन्हें आत्मज्ञान लाभ करेছেন, आफ्टर अचीविंग दैट स्टेज देन ओनली वन इज एंटाइटल्ड टू हियर द रासलीला। ये जो लास्ट पैराग्राफ में जो लिखा है वो कहां लिखा है जो आप बोल रहे हैं? he is entitled to hear रासलीला only when who is self realized। where is that line written? is it your personal line or in the book it is written? लिखा है इसमें যে মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তিনি যখন নির্ভরযোগ্য বস্তু থেকে ভগবানের রাসলীলা বর্ণনা করেন তখন মানে এটা হ্যাঁ তখন তার হৃদয় থেকে সব রকমের জড়, लेकिन then it happens। but इसके आगे भी तो one who is not self realized but in a devotional line वो भी तो सुनता है। हम लोग बट वो उपलब्धि नहीं कर पाता, वो भ्रमित हो जाता है। नहीं, भ्रमित नहीं बोलेंगे, उतना ही उपलब्धि कर पाता है जितना उन्होंने सरेंडर किया है। we have not surrendered fully but at least we also appreciate a little bit of रासलीला। हम लोग भी जब श्रवण करते हैं। ओके यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। इधर लिखा है रासलीला को तत्व से समझने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से संसारिक काम वासना से घृणा करेगा। तो रासलीला को तत्व क्या मतलब हुआ? हाँ, कृष्ण तत्व से, भगवत तत्व से, लॉजिकली थ्रू स्पिरिचुअल लॉजिक कोई अगर हृदयंगम कर पाएगा, यानी ये रासलीला भक्त और भगवान का सर्वोच्च पास टाइम है। इसमें कोई काम वासना नहीं है, इसमें कोई काम सुख नहीं है, इसमें भगवान सबसे ज्यादा आनंद प्रदान कर रहे हैं एक एक भक्त के साथ खुद पर्सनली नृत्य करके। और भक्त भी भगवान को सर्वोच्च आनंद दे रहा है। भक्त का रासलीला में जो जो भगवान के साथ नृत्य कर रहा है उनका क्या उद्देश्य है कि हम भगवान को सबसे ज्यादा आनंद देंगे, और भगवान का क्या उद्देश्य है कि हम इस भक्त को सबसे ज्यादा आनंद प्रदान करेंगे। तो ये सर्वोच्च है, इसमें कोई ये सब है, ये दीज आर द तत्व। ये समझकर जो रासलीला को अंडरस्टैंड करेगा वो इसको हृदयंगम कर पाएगा।
तो प्रभु जी आत्मा परमात्मा से उच्च हाई स्टेज हो गया ना फिर ये रासलीला तत्व, जहाँ फिर से बोलिए। जैसे जो आत्मा परमात्मा का रियलाइजेशन करते हैं तो उससे ऊपर वाला तत्व हो गया ना ये रासलीला तत्व। एकदम एकदम सर्वोच्च स्तर है, ठीक। सर्वोच्च। आत्मा परमात्मा जब मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरा प्रभु है, इससे तो बहुत ऊपर। आत्मा परमात्मा रियलाइजेशन कैन मैक्सिमम गेट अस टू वैकुंठ लोक, बट ये तो और बहुत ऊपर है। Yes. बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ वैदिक विधि निषेध, एकदम सर्वोच्च है। इंदिरा सखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे मायापुर तो मुझे बहुत हंसी आया था कि ये क्या, कृष्ण बीच में चारों तरफ, गोपियों को तो गोपी समझते ही नहीं थे, मेंटलिटी बिल्कुल भौतिक था। लेकिन जब आपके घर पे आके क्लास करना शुरू किए तो वो हम लोगों को 2-2.5 साल, 3 साल, फिर 4 साल, अभी धीरे धीरे जाके अभी ये जो बात आ रही है एकदम प्रैक्टिकल हो गया प्रभु, कि अपने आप घृणा होगी सांसारिक जो काम वासना है, या ये जो हमारा हम लोग जो भी देखते हैं ये सब भौतिक आकर्षण, इससे ऑटोमेटिक अब घृणा होती है प्रभु। अब बिल्कुल अब अंदर से बिल्कुल लगता है कि ये सच में बहुत माया का जगत है और इसमें सब हम फंसे हुए हैं और इसी के कारण फंसे हुए हैं। जितने लोग फंसते हैं इस वजह से ही फंस जाते हैं, काम वासना की वजह से भौतिक जगत में, और लोग इस तरह से भ्रमित हो जा रहे हैं कि उनको कुछ नहीं समझ में आता है। तो ये बहुत डेंजरस है प्रभु, लेकिन ये पॉइंट अभी एकदम प्रैक्टिकल समझ में आ गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इसीलिए पहले हम लोग ये रासलीला के बारे में सुनते तो हम लोग अलग अलग स्टेज, आस्ते आस्ते जितना उपलब्धि करेंगे, जितना साल जाएगा भक्ति में, जितना दूर हम लोग जुड़ेंगे, आस्ते आस्ते ये और ज्यादा क्लियर होगा। अभी भी शायद थोड़ा वेग है, ऊपर ऊपर हम लोग क्लियर, बट अंदर अंदर क्या है। तो आस्ते आस्ते जितना होगा उतना और साफ होगा, उतना प्रकाश करेगा भगवान आस्ते आस्ते। इट विल मैनिफेस्ट, ही विल मैनिफेस्ट विथ पैसेज ऑफ टाइम 100%। नहीं तो उसीलिए अभी हम जब मोहन गोविंद प्रभु से परमिशन ले रहे थे कि हम लोग क्या बुक करें, कौन सा बुक करें, ये गोपाल चंपू करें या गोविंद लीलामृत करें, तो गोविंद लीलामृत में अष्टकालीय लीला है भगवान का, पूरा बुक अष्टकालीय लीला के ऊपर। तो मोहन गोविंद प्रभु ने मना कर दिया, बोला गोविंद लीलामृत मत करो, ये बुक गोविंद लीलामृत। हम सोच रहे थे ना दोपहर को, बता रहे भी थे आप लोगों को, कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित गोविंद लीलामृत करेगा। मोहन गोविंद को बोला नहीं नहीं नहीं, एकदम मत करना, वो अभी वो अष्टकालीय लीला के ऊपर है, उसमें बहुत भगवान का इंटीमेट पास्ट टाइम दिया हुआ है राधा रानी के साथ, तो वो लोग अभी अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा, डोंट डू दैट। तो फिर हम लोग गोपाल चंपू में चले। गोपाल चंपू में भी तो देखिए कितना डिटेल में दिया हुआ है, इतना डिटेल में दिया हुआ है, इतना डिटेल में तो हम कभी पढ़ा ही नहीं। कभी कृष्णा बुक में क्या, कोई भी बुक में इतना पढ़ा नहीं। दोपहर को जो जो क्लास मिस कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, जो गोपाल चंपू है, माय गुडनेस, थोड़ा पहले पहले सब ऊपर से जाएगा, वो हमेशा हर एक बुक का होता है, लेकिन आस्ते आस्ते इसका रस आस्वादन कर पाएंगे। जैसे कभी कभी क्या उदाहरण दो, हाँ गन्ना, अगर आप गन्ना खाया, सोचिए गन्ना, ये गन्ना को खाने के लिए पहले उसका बाहर का वो छिलका को ऐसे ऐसे करके छराना पड़ेगा। उफ, कितना कष्टदायक है ना, दांत से छराना पड़ेगा, एक दो दांत गिर भी जाएगा फिर भी छरा के जब बीच वाला पोर्शन छरा लेंगे, फिर जब बीच वाला रस चबाएंगे, तब आपको मिलेगा एकदम मिष्टी मधुर मतो स्वाद, गन्ने का जूस, है ना। तो वैसे ही थोड़ा पहले लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। आधा लोग उसी में निकल जाएगा, देखिएगा, आधा लोग उस धैर्य नहीं रख पाएगा। अरे बाबा क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है, धूप छोड़ो इसको, हाँ बस वो निकल गया। वो भी योग्यता बोलने से मेरा अधिकार नहीं उतना बोलना, लेकिन वो छट जाएगा ऐसे, जो बचा कुचा रहेगा उसी वही उसको सुन पाएगा। हृदयंगम तो दूर की बात, सुन पाएगा कम से कम। तो वन मस्ट हैव दैट पेशेंस एंड श्रद्धा। हरे कृष्णा। यस, निर्गुणा निलंबरी माता जी। प्रभु जी एक प्रश्न और था, जैसे कि वो जो बद्ध जीव होते हैं वो तो 4 त्रुटियों से रहते हैं ना, उसमें 4 अवगुण होते हैं, वो जो भ्रमित होना, ये जो भी होता है। तो जैसे कि हम विधि विधान पालन कर रहे हैं, तो लेकिन बार बार तो ये कवर अप कर लेते हैं ना 4 त्रुटियां, तो ये तो करते करते ही जाएगा ना, मतलब जितना श्रवण करे, विधि विधान भक्ति कर रहे, मतलब विधि विधान रूल एंड रेगुलेशन कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ जैसे, तो जैसे जैसे कि मतलब, लेकिन माया तो फिर वापस आवृत कर लेती है। तो बस ये जो मतलब जितना हम साधु संग करेंगे, जितना सेवा करेंगे, जितना
एसोसिएशन करेंगे तब इसकी मात्रा कम होगा ना, ये 4 त्रुटियों का, एकदम या कैसे, या कभी भी कवर अप कर लेगी? नहीं, कम हो जाएगा, वही प्रोपोर्शनेटली कम होते रहता है। ऐसा नहीं कि जब फिर से कवर अप करता है, फिर से ओवरशैडो करता है, लेकिन उतना ही प्रोपोर्शन करता है जितना हमारा सरेंडर नहीं हुआ है, उतना कवर अप नहीं। कोई अगर सोचिए फॉर एग्जांपल 23% सरेंडर्ड है, एनीवेज दिस फिगर्स आर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, तो माया भी अगर उसको ओवरशैडो करे बीच बीच में तो 67% ही करेगा, 100 नहीं करेगा, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो द परसेंटेज ही सरेंडर्ड, तो उतना परसेंट तो माया विल नॉट अटैक हिम और हर, whatever he has not surrendered, that percentage can Maya attack. Yeah, yes, राजीव प्रभु। वो ये जो 4 नियमों का हम पालन कर रहे हैं, ये तो निषेध में आता है ना, विधि में तो 16 वाला जो जाप करते हैं वो विधि में आता है। Absolutely, no meat eating, उसीलिए नाम स्टार्टिंग होता है 4 निषेध नो से, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो ये नो वो। हाँ, yes, मनीषा माता जी। Hare Krishna Prabhu. So the thing is, the more we surrender, the more we get controlled by Yogamaya Devi, right? Absolutely, very good point. The more we surrender, the more we get controlled by the internal potency of the Lord. A very good point. Wow. The portion we have surrendered, that is being controlled by the internal potency. The portion we have not surrendered, that is controlled by the external potency of the Lord. So the more progress, the more controlled by Yogamaya Devi, right? Yogamaya, and less controlled by Mahamaya. Mahamaya. So our goal should be to be controlled by Yogamaya. Fully controlled by Yogamaya. Full, exactly. जैसे यहाँ लिखा है कि जो लोग भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो पूरा भगवान के योगमाया। अभी देखिए योगमाया, अभी सोचिए भगवान के साथ अभी भक्त लोग का मिलन कराएगा, तो किनको किनको चुनेगा? आप और मेरे को चुनेगा? कभी नहीं। वो जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के धाम में, उन लोग के बारे में से ठीक है, आज भगवान इन लोग के साथ गोचारण लीला करने जाएंगे, इन लोग के साथ बट वृक्ष के नीचे भोजन करेंगे दोपहर में, ऐसे अष्टकाली लीला में अलग अलग सब उन लोग के साथ कराएगा ना, थोड़ी हम लोग के साथ कराए। हम लोग बद्ध जीव है, हम लोग के साथ नो 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 यू आर नॉट अलाउड। तो प्रभु जी ये सरेंडर करने का कृपा भी तो भगवान ही देंगे ना? नो नो नो, दैट इज अनटू अस। वो तो ऑफ कोर्स সীমিত স্বতন্ত্রতা দিয়ে দিয়েছে আমাদের। মোহমায়া কন্ট্রোলটা বেশি, তো উনি তো আমাকে টেনে নেবেন না, তো যোগমায়া দেবী তো would like one moment we can all surrender one moment. Yeah, of course, right, that is up to us. শরণাগতির শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দিয়ে গেছেন কিভাবে শরণাগতি মুখ দিয়ে বললে হবে না শরণাগতি হয়ে গেছে, এক সেকেন্ড, নো, দিস আর দ্য প্রসেস অফ শরণাগতি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যা দিয়ে গেছেন। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, जितना देर हम लोग कृष्ण भावना भावित रहेंगे उतना देर तो माया देवी के उससे बचे रहेंगे आरोग्य से। डिपेंड करता है, हाँ, कृष्ण भावना भावित रहेंगे तो यस ऑफ कोर्स, सही बात है। जहाँ वो है ना, जैसे कृष्ण को भूलेंगे फिर वो अंधकार में आ जाएंगे। उसीलिए जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा फिर योग माया के अंदर में। एब्सोल्युटली, उसीलिए आस्ते आस्ते इसको तीव्रता बढ़ाना चाहिए। जैसे हम लोग का रेगुलेटर होता है ना, वो गैस फ्लेम में आस्ते आस्ते हम लोग प्रभुपाद बोलते हैं बॉइलिंग द चर्निंग द मिल्क, बॉइलिंग द मिल्क में क्या बोलते हैं प्रभुपाद? चर्निंग द मिल्क बोलते हैं प्रभुपाद जी। মানে আর জিনিসটাকে একদম গাঢ় করা, এটাকে একদম ফুটিয়ে ঘন করা। नाउ इट इज टाइम टू डू दैट। जैसे इस्कॉन जब पहले थे स्टार्टिंग डेज में, कोई आता है श्रील प्रभुपाद उनको सुलामाला 4 नियम देकर उनको दीक्षा देने के लिए, लेकिन अभी क्या है, अभी कोई दीक्षा लेगा तो कितना पापड़ बेलना पड़ता है। यू हैव टू पास दिस टेस्ट, दैट टेस्ट, डिसाइपल कोर्स करो, ये करो, वो करो, इंटरव्यू होगा, ये होगा, फिर क्वालिफाइड। बिकॉज व्हाई? बिकॉज अभी संस्था मैच्योर्ड पोजीशन में है। अभी संस्था मैच्योर्ड 50 साल से ऊपर हो गया, नाउ इट इज ऑन अ मैच्योर्ड प्लेटफॉर्म। अभी तो अनक्वालिफाइड व्यक्ति को हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे। यस, भाग्यराधा माता जी। Prabhuji, one doubt I have, this influence of Yogamaya will start only after death, no? If we are surrendered, what can happen now? Yes, absolutely, absolutely, absolutely. Okay, Hare Krishna. And Prabhu, ye Yogamaya is related with Kripa also. Yes, absolutely. हाँ, भगवान जिनके ऊपर कृपा करेगा, absolutely, very good points coming up today. Okay. अगला श्लोक 31।
यस माता जी। प्रभु जी, एक प्रश्न और था, जैसे कि भगवान की कृपा पे डिपेंड करता है, तो ये जो हम रेगुलेटेड लाइफ कर रहे हैं पालन, उसमें भी तो डिपेंड करता है ना, तभी तो प्यूरिफिकेशन होगा। हर एक चीज में इवन रेगुलेटेड विधि में भी डिपेंड करता है भगवत कृपा के ऊपर। यस, बट रिमेंबर, पहला उंगली कौन सा है वो याद रखिएगा। पहला उंगली भगवत कृपा नहीं है, पहला उंगली भक्तों का प्रयास है। उसीलिए वो इंग्लिश में प्रभाव है, God helps them those who helps themselves. God help those who help themselves. हाँ, करेक्ट। कोई अगर समुद्र किनारे में बैठे रहेगा और एक्सपेक्ट करेगा कब लहर आकर हमको नहला देंगे नो, सोचिए किनारे में बैठे रहेगा, कब लहर आएगा मुझे नहाएगा, वो नहीं होगा। आपको उतर के नहाना पड़ेगा। पहला कदम आपको करना पड़ेगा। कोई बोलेगा भगवान 1 कदम बढ़ाएंगे तो मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा, तब आप सपना देखते जाओ। भगवान बोलेगा बेटा तुमको पहला कदम तुम्हारा होना चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट मी टू फर्स्ट यू हैव टू टेक द प्रयास। सो इसीलिए गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। यस, प्रभुपाद जी ने एक वीडियो में बोला भी था कि गॉड इज योर फर्स्ट फ्रेंड। अगर यू आर नॉट एक्सपेक्ट, मतलब अगर तुम नहीं एक्सेप्ट करोगे तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा आपको? यस, बंकिम प्रभु। প্রভু জি, রাসলীলাতে মদনকে পরাস্ত করে দিল, ভেরি গুড, সেখানে কোনো ডাউট নেই। কিন্তু প্রথম যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীরা দর্শন দেয়, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের 3টে ডিউটি বুঝিয়ে দিয়েছিল। নারীদের 3টে ডিউটি মাস্ট বি মেনটেন। 1 নম্বর হলো যে প্রতি সেবা তোমাকে করতে হবে মন পন্থা দিয়ে। দ্বিতীয় সন্তান পালন। তৃতীয়ত স্বামীর যারা রিলেটিভ তাদেরকে মেনটেন করা। সেখানে কি হবে? ওই জায়গাটা কি হবে? সেখানে তো মানে মানতে বাধ্য, পতির কথা মানতে বাধ্য, ছেলের কথা মানতে বাধ্য। সেখানে কি হবে? হরে কৃষ্ণ প্রভু। अगला श्लोक 31। धर्मचारी रागे दुहे करो ए मिलन। धर्मचारी रागे दुहे करो ए मिलन। कभु मिले कभु ना मिले दैवेरो घटन। कभु मिले कभु ना मिले दैवेरो घटन। परस्परेर प्रति शुद्ध अनुरागेर फले एखाने रहिल ग्रंथ अमृत लहरी। बोलो हरि हरि। कबीरा